सो लेट अस कंटिन्यू देन विद दिस। सो अभी हमने जो फाइनल जो हमारा देखा वो ये था कि अगर किसी लेवल के लिए जे का वैल्यू एल प्लस 1/2 है तो हमने देखा इसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, और अगर किसी लेवल के लिए जे का वैल्यू एल माइनस 1/2 है तो ये जो एनर्जी लेवल है ये अप हो जाएगी। ओके, सो दिस थिंग राइट। ओके, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम्स इन अ क्विक बिट, आई विल ड्रॉ देम सो दैट जल्दी जल्दी हम इस चीज़ को फिनिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये लेवल, ठीक है, then we have some other level here. Okay, there is a difference, this level here. Okay, there is some other level here, then other level here. Okay, then other level here. Okay, then other level here. Okay, this is the level, right? Okay. So here we have, okay, levels, these levels. Okay, let us label them in a quick manner. This was if I'm right 1s. Okay, this one was 1p, right? Okay, this one was 2s and 1d. This one was 2s and 1d. As per when जब हमने SIP independence include नहीं किया था तब ये degenerate आ रही थी, ठीक है. Then this was 2p and 1f. 2p and 1f is here. Okay, then we have level is here 3s 2d 1g. Okay, this is 3s 2d 1g. Okay, these are the three energy this degenerate levels. Okay, this was when I am saying that when I have not included L dot S. Okay, this L dot S term was not included there. Okay, I have not considered the coupling effect. Okay, not included. So I will now include it. और इंक्लूड मैं कैसे करूंगा, मुझे पता है हर कोई एनर्जी लेवल अब स्प्लिट होने वाली है, ठीक है कि नहीं. ओके, लेट अस सी किस तरह से ये स्प्लिशन होगा. ठीक है, इट्स एन अमेजिंग फेनोमेनन कि स्प्लिट किस तरह से होगा. से इफ वी हैव s इज इक्वल टू 0, इफ वी आर कंसिडरिंग l इज इक्वल टू 0, say for example we are considering l is equal to 0. Now we all know l is equivalent to 0. Okay, so l is equal to 0 refers to which level? 1s level. Okay, l is equal to 0 refers to 1s. What are the possible values of j? j के पॉसिबल वैल्यूज मैंने आपको दो बोले, ये लिखे हुए हैं ना, या तो j प्लस 1/2 या तो j माइनस 1/2. ओके, l is 0, so it means j 0 plus 1/2 या 0 minus 1/2. Okay, it will be same. Okay, right. So what we have? We have 1/2. Okay, am I right? So it's 0 plus 1/2 or 0 minus 1/2. Okay, it will be same, I think, l plus 1/2 or l minus 1/2. Okay, so we have j 1/2. Okay, so different values of j नहीं आ रहे हैं, j के same ही values आ रहे हैं, j के different values नहीं आ रहे हैं. So I must say that this level will not split. No splitting. This level will not split. Okay, it will not split. Now why it will not split? Because j का एक ही possible value है, तो splition नहीं होगा. ठीक है. Okay, now we have like this way. If we consider j is equal to okay, let's resume then. We have l is equal to 0, then there will be no splitting. No splitting of energy levels will occur for this case. Okay, बस तो वॉइस नहीं आ रही है. I am saying like this way. If l is equal to 1, तो in that case l is equal to 1 अगर है तो उसमें क्या हो जाएगा, j plus l plus 1/2 means 1 plus 1/2, that is 3/2, and then we have 1/2 other value. ओके, आप बता दो खुद से कि कौन सी एनर्जी लेवल राइज हो जाएगी और कौन सी एनर्जी लेवल जो है वो फॉल हो जाएगी. ठीक है, मैंने कहा कॉरस्पॉन्डिंग टू j plus l/2 एनर्जी लेवल विल फॉल, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू j minus l/2 द एनर्जी लेवल विल ओके इट विल जस्ट गो अप. ओके, दिस लेवल फर्स्ट लेवल जो मैंने लिखी j इज इक्वल टू l प्लस 1/2, ये वाली एनर्जी लेवल जिसके लिए 3/2 है, इट विल गो डाउन, and this energy level 1/2 will go up. Okay, so you will remember 3/2 one will go down and 1/2 will go up. Okay, so let us draw them. Okay, simultaneously draw भी करते हैं. 1s level पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, it is as such. Okay, जैसे ये थी.
1s लेवल पे कोई असर नहीं। लेकिन जो दूसरी लेवल है ये 1p लेवल, 1p, if I say L is equal to 1, it means 1p, obviously it means 1p. तो 1p के लिए क्या हो रहा है, एनर्जी लेवल स्प्लिट हो रही है। ओके, नाउ दिस एनर्जी लेवल इज गेटिंग स्प्लिटेड into two energy levels. Okay, so let me draw them. If I draw them, okay, for your convenience, let me draw them like this way. Okay, this thing, right, it is getting split into two parts. Okay, which one is जो level up हो रही है ना, that is 1/2. So let me write it 1p 1/2. Okay, I will label it like this way, 1p 1/2. Okay, this labeling is important, 1p 1/2. और जो level down आ रही है, that is 1p 3/2. ओके, इट इज 1p 3/2, राइट। नाउ अब हम देखेंगे ये जो उसके बाद वाली लेवल है 2s, सिंस s के लिए फिर से L0 है तो नो स्प्लिटिंग। ओके, नो स्प्लिटिंग ऑफ लेवल विल ऑकर फॉर s इज इक्वल टू 0. ओके, सो 2s लेवल will remain such, it has no degeneracy, it will not split up. Okay, no effect of spin, so this will be like this. Okay, so this 2s level remains unaffected. Okay, this 2s, if this 2s remains unaffected, then we have 1d. ओके, लेट अस चेक 1d के लिए क्या चल रहा है, 1d के लिए मसला क्या है। ओके, लेट मी रब दिस 1d के लिए l का वैल्यू क्या है 2, 1d के लिए l का वैल्यू 2 है यहाँ पे। लेट अस ड्रॉ दैट, इफ इट इज 2 then what will I do? Okay, okay, let us say 2, l is equal to 2. Okay, it is 1d level, so what happening, j क्या आएगा corresponding to this l plus 1/2, that is 2 plus 2 1/2, that is okay 2, that is 5/2. if I am one value will be here 5/2 and another value will be here okay 3/2. okay, one value जो 3/2 है, it will corresponding to j minus l/2, so it will go up, and the other value जो j plus 1/2 है, it will go down. okay, so similar यहाँ पर भी एनर्जी लेवल्स का ब्रेकेज होगा, एंड लेट मी ड्रॉ दैट ब्रेकेज। ब्रेकेज इस तरह से होगा, स्प्लिटिंग इस तरह से होगी, एक लेवल चली जाएगी नीचे और दूसरी वाली एनर्जी लेवल आ जाएगी ऊपर। 2s तो अपनी जगह पर है। ओके, लेट अस देन लेबल देम, राइट। दिस एनर्जी लेवल जो नीचे चली गई, इसका मैंने क्या रखना है नाम, इसका मैं नाम रखूंगा 1d। ओके, वन मस्ट से 5/2। ओके, 1d 5/2, एंड ये जो ऊपर चली गई इसका मैं नाम रखूंगा 1d 3/2। Okay, rest of the things are simple, we can draw them, we can just go like this way, and higher we can draw them. Okay, now the condition, the question arises here, is this scheme able to explain the magic numbers? So let me say yes, this is able to explain the magic numbers. Finally, how it is able to measure the magic numbers, this magic numbers कैसे आ रहे हैं यहाँ पे, वो मैं चीज आपको समझा रहा हूँ, एक सिंपल सी चीज है, आप समझो। अब हर किसी एनर्जी लेवल की डिजेनरेसी होती है, we know that in that structure of atom we know the degeneracy is 2l+1. okay, degeneracy is 2l+1. okay, so I can say here in this case degeneracy may be 2j+1. 2j+1 is the degeneracy. okay, 2j+1 is degeneracy. okay, let me say for this first level 1s, how many electrons it contains? 1s में कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, ठीक है, तो इसमें पहले भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स थे और अब भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, कोई मसला नहीं। फर्स्ट शेल क्लोजर ऑकर्स एट 2। ओके, इट इज गुड। नाउ दूसरे में देखो, p 3/2 में देखो, 2 × 3/2 + 1, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 4। कितने न्यूक्लियॉन्स आ सकते हैं? 4। ओके, सो इसमें आएंगे 4, 4। ओके, उसके बाद वाले में कितने आएंगे? शाबाश, यू कैन जस्ट, ओके, लेट मी, somebody is saying repeat. okay, let me repeat the point. I am saying that the degeneracy in this structure of atomic physics is 2l+1. this defines the degeneracy. now here we can define the degeneracy by 2j+1 equation. ओके, अगर आपको देखना है कि ये 1p 3/2 की डिजेनरेसी क्या है, तो आप ऐसा करो, आप j के बदले 3/2 डाल दो, तो 2 and 2 will go, तो 3 + 1 that is 4, तो इसमें 4 न्यूक्लियॉन्स आ सकते हैं। सिमिलरली 1/2 के लिए देखो, तो 1/2 के लिए देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं। ओके, तो यहां तक हो गया ना p कंप्लीट, p लेवल हो गई कंप्लीट, अब p के लिए और कोई लेवल नहीं है। ओके, दिस इज 4 + 2 that is 6, और प्रीवियस वाले 2 that is 8। ओके, सेकंड क्लोजर इज ऑकरिंग एट 8। दिस इज गोइंग इन अ वेरी फाइन मैनर। ओके, 2s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो तो पता ही है। अब 5/2 वाले में देखो, 5/2 में इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एज पर दिस फॉर्मूला।
2J+1 फार्मूला, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से 3/2 में इसमें ओके इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, है ना, ठीक। सो जरा काउंट करें, 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 और 4 कितने हो गए 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 8 कितने हो गए 20, ओके। दिस इज द थर्ड मैजिकल नंबर 20। okay, if you are going to repeat this procedure, you will obtain other quantum numbers, other magic numbers also. I will at last show you a diagram where I will show how these magic numbers are coming up, okay. Okay, right. Nucleons, right, nucleons, okay. So it happens sometimes, nucleons, right, not electrons, nucleons. So अगर आप इसको स्कीम को रिपीट करते जाओगे, you will obtain the same things, okay. Let me then just show you a diagram where we have make all of these. Now यहाँ पर एक चीज आप याद रखो, somebody will say कि आपने पोटेंशियल लिया था पहले, जो पोटेंशियल आपने पहले कंसिडर किया था, आपने इनफाइनाइट पोटेंशियल कंसिडर किया, आपने हार्मोनिक पोटेंशियल कंसिडर किया, वुड सेक्शन पोटेंशियल कंसिडर किया, ठीक है। तो ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स आप बना रहे हो, ये किस पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग में है, ये किस पोटेंशियल को लेके आप बना रहे हो। देखो यार, आई एम कंसिडरिंग, आप कोई भी पोटेंशियल कंसिडर कर लो, ठीक है, कोई भी पोटेंशियल, बस साथ में ये टर्म मत भूलना, ठीक है, वीएसओ मत भूल जाना, ठीक है। कोई भी पोटेंशियल आप कंसिडर कर लो, हार्मोनिक पोटेंशियल, इनफाइनाइट पोटेंशियल, ओके, सम सॉर्ट ऑफ अ वुड सेक्शन पोटेंशियल और सम अदर पोटेंशियल, जो आपको अच्छा लगता है वो पोटेंशियल, ठीक है, कंसिडर कर लो। एनर्जी लेवल्स विल बी ऑलमोस्ट सेम, सेम टू सेम स्कीम विल बी ऑब्टेन्ड। दिस इज व्हाट इज टर्म्ड एज शेप इंडिपेंडेंट फॉर्मुलिज्म। आई रिपीट, शेप इंडिपेंडेंट फॉर्मुलिज्म यही होता है, ठीक है। सो फाइनली वी आर एबल टू एक्सप्लेन द energy level. So this will be the final structure of shells inside the nucleus. Inside the nucleus इसी तरह से shells जो हैं वो डिवाइड होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें वो है जो याद रखनी चाहिए, वो ये कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ऊपर ऊपर की लेवल्स को कंसिडर करोगे, देन वी हैव से वी हैव 2p, देन वी हैव 1f, तो यहाँ पर जम्बलिंग हो जाएगी ना, 2p भी स्प्लिट हो जाएगा दो में 1f भी स्प्लिट हो जाएगा दो में, तो हियर इट विल बी समहाउ सम सॉर्ट ऑफ 4 लेवल्स, तो यहाँ पर कुछ जम्बलिंग हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे 3 है, और इस तरह से यहाँ पर भी कुछ जम्बलिंग सी हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो लेवल्स बढ़ रही हैं, ठीक है। लेकिन उन लेवल्स में जो नजदीकी है, डिस्टेंस है, गैप है, वो कम हो रहा है, ठीक है। गैप इज बिकमिंग लेस एंड लेस, ओके। सो वी कैन से एज द मास नंबर इंक्रीजेस, जैसे मास नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है। अरे यार, मास नंबर इंक्रीज होगा तभी तो आपको हायर लेवल की जरूरत पड़ेगी ना। अगर आपके पास लाइटर न्यूक्लियर है, काफी लाइट है, तो हायर लेवल उसको बनाने की जरूरत ही क्या है, हायर लेवल मत बनाओ फिर, क्योंकि आपके न्यूक्लियस तो पहले वाले लेवल्स में फिलअप हो जाएंगे ना। अब हायर लेवल की जरूरत तब पड़ती है जब मास नंबर ज्यादा हो, ठीक है। अगर मास नंबर ज्यादा है तो व्हाट यू नीड हायर लेवल्स, ओके। से फॉर एग्जांपल फॉर यूरेनियम type of element, there are 235 is mass number, so there are a lot of these nucleons, a large number of nucleons are there. So in order to do the configuration of this nucleus, you will require large amount of energy, large levels, some higher levels also. So उसमें क्या हो जाएगा, these energy levels will come close to each other or crossing of the levels will occur, okay. So हम कहते हैं for energy levels for all those nuclei where A is less than 50, the distribution is like this, order is perfect, no crossing over is there. But if we say atom this mass number greater than 50, then the level is jumble, and what happens then, this obviously the levels will cross each other, okay. So and now last point of this shell model, last point, that is कि जो एक assumption आपने ली, एक assumption जो हमने यहाँ पे consider की, that was totally I think a bit wrong, right. What was that? I considered that for proton and neutron, the potential is same. मैंने पहले ही कहा न्यूक्लियर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए पोटेंशियल सेम है, लेकिन मैं जानता हूं ऐसा नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए पोटेंशियल सेम नहीं है, न्यूट्रॉन के लिए इनफैक्ट पोटेंशियल अलग है और प्रोटॉन के लिए अलग है। कैसे? क्योंकि प्रोटॉन में कूलम्बिक स्कैटरिंग भी आती है, वो आती है ना, वो कूलम्ब रिपल्शन टर्म, ओके। वीसी ऑफ आर जो हमने वहां पे किया था, इसमें लिक्विड ड्रॉप में हमने उसको कैलकुलेट किया था, दैट वाज समहाउ like this way, Z e square something divided by 4 pi epsilon naught r, it was like this, 4 pi epsilon naught r. Then we have here some which is 3/2 minus, if you remember correctly, that's 3/2 minus 1/2 r by r, okay. This one was there, r by r, and then square, I think, I guess it was square, okay. This thing was there, okay. This was the potential,
coulombic potential, right? This coulombic potential was there in case of proton, so it will affect its potential. Okay, इसका potential तो affect हो ही जाएगा ना. अब देखो प्रोटॉन के लिए क्या पोटेंशियल आएगा, प्रोटॉन के लिए पोटेंशियल आएगा एक तो वो वाला अपना पोटेंशियल जो जनरल में न्यूक्लियस का पोटेंशियल है, और ये वाली टर्म भी आपको ऐड करनी ही पड़ेगी. क्या करेंगे तो जरूरी है अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है. और जो न्यूक्लियस का पोटेंशियल है वो इस तरह से लिखेंगे माइनस अट्रैक्टिव पोटेंशियल, राइट. दिस इज फॉर प्रोटॉन. एंड न्यूट्रॉन के लिए देखिए तो V of R है, सिंपल, नो coulombic potential is there. Okay, now one thing can be observed, this coulombic potential is directly proportional to Z, atomic number rather I say. For light nuclei, जो न्यूक्लियस लाइट है मतलब उनका एटॉमिक नंबर बहुत कम है, तो जो लाइट न्यूक्लियस है जिनका एटॉमिक नंबर बहुत कम है उनके लिए VC जो है ना काफी स्मॉल है, काफी स्मॉल है उनके लिए VC. सो इन दैट केस जो मैंने अप्रोक्सीमेशन ली थी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पोटेंशियल एक जैसा है, दैट होल्ड इज गुड, इट्स क्वाइट गुड. ओके, इफ वी कंसिडर दोज न्यूक्लियस वेयर एटॉमिक नंबर इज लेस. So that's why I am making a statement that the shell model is best applicable to lighter nuclei. Okay, shell model is best applicable to lighter nuclei. Why so? Because lighter nuclei के लिए Z छोटा है, Z छोटा है तो coulombic potential छोटा है, ठीक है, small होगा, ठीक है, right. Let me say it is like this way. Okay, if we have this graph, if we draw the graph, okay, let's draw the graph. Here we have R on one axis, it's R, and on one axis it's potential. Okay, let us say it is for I am drawing it for neutron. Okay, so the potential will be like this. If I am considering the Wood section potential, okay, it will be like this, this thing like this. So this will be V naught, है ना. और ये कंसिडर कर लें आप सब लोग इसमें एनर्जी लेवल्स, ये डाली मैंने इसमें एनर्जी लेवल्स, राइट. दीज आर एनर्जी लेवल्स. ओके, सिट्रेट हैं, अब नहीं बन रही है तो सिट्रेट है, इस तरह से एनर्जी लेवल्स इसमें इस पोटेंशियल के अंदर ये एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है. लेकिन आपको पता है प्रोटॉन के लिए ये पोटेंशियल नहीं है, प्रोटॉन के लिए पोटेंशियल इससे थोड़ा कम आएगा या ज्यादा आएगा. ओके, आज कम आएगा कि ज्यादा आएगा, कम आएगा, राइट, कम आएगा क्योंकि माइनस में टर्म प्लस हो रही है ना, तो कम आएगा, तो पोटेंशियल इससे थोड़ा कम आएगा. तो लेट मी से पोटेंशियल कितना कम आ रहा है, पोटेंशियल यहाँ पे अटैच कर. अब कोई कह सकता है कितना कम आएगा, इतना ही VC, और कितना आएगा VC. So these are energy levels. Now are you making some sort of a comparison? You can see the potential depth for proton is less while as for neutron is more. Okay, it is obvious. अगर दो प्रोटॉन्स के बीच में काफी ज्यादा रिपल्शन है तो उसको निकालना तो आसान है क्योंकि एक प्रोटॉन तो उसको ऑलरेडी बोल ही रहा है, मतलब आप निकल जाओ, ठीक है, रिपल्शन तो दे ही रहा है उसको, तो इजी है उसको रिमूव करना. देन न्यूट्रॉन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा रिमूव करना. सो सी हियर, दिस इज एस्टोनिशिंग डिफरेंस, दिस थिंग इज एस्टोनिशिंग कि कुछ एनर्जी लेवल्स एक्स्ट्रा प्रेजेंट है न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स के लिए, व्हाइल एज प्रोटॉन्स के लिए कुछ एनर्जी लेवल्स एक्स्ट्रा नहीं है, कम ही है. प्रोटॉन्स के लिए एनर्जी लेवल्स कम है, न्यूट्रॉन्स के लिए एनर्जी लेवल ज्यादा है. एक्चुअल शेल मॉडल ये आना चाहिए. ओके, एक्चुअल शेल मॉडल ये आना चाहिए, ठीक है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लाइटर न्यूक्लियस तक ही जाएंगे, लाइटर न्यूक्लियस तक ही ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर हेवियर न्यूक्लियस में चले गए ना तो ये तो आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा, आपको न्यूट्रॉन्स के लिए ज्यादा लेवल्स बनानी पड़ेंगी और प्रोटॉन के लिए तो आपको कम लेवल्स पर ही जो है रहना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं, है ना. दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. Okay, one thing, let us say we have a question here. That concept is spin and parity. Okay, let me make some statements regarding spin and parity. Okay, I will just make few of the statements regarding spin and parity. Okay, and spin and parity. Okay, right. अच्छा, एक चीज तो एटॉमिक फिजिक्स में होती है जिसको आप सभी लोग मानते हो कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं एटम्स की, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स उसको डिसाइड नहीं करते हैं, बल्कि कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं. और एवरीबडी विल से वो इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ऑब्वियसली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करते हैं प्रॉपर्टी को, आयोनाइजेशन एनर्जी को वही डिसाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को वही डिसाइड करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एवरीथिंग, एवरी प्रॉपर्टी इज डिसाइडेड बाय, ऑलमोस्ट एवरी प्रॉपर्टी इज डिसाइडेड बाय देम. ओके, यू कांट पुट आउट एन एक्सेप्शन. वन मस्ट से दैट, कोई कहेगा कि यहाँ पे आप देख लीजिए मॉड देख लीजिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें तो हम शुरू से सारे इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, ठीक है, एंड तक. मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इन मोस्ट ऑफ द मॉडल्स
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही डिपिक्ट करते हैं प्रॉपर्टीज को। ओके, देयर आर वेरी फ्यू प्रॉपर्टीज व्हिच आर डिसाइडेड बाय ऑल इलेक्ट्रॉन्स टुगेदर, लाइक बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, समथिंग, those properties they are decided by all of the electrons together, as जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एक्सट्रीम थ्योरी कंसिडर कर रहे हैं, वो ये कि all the properties are determined by valence electrons in case of atomic physics. In case of nuclear physics ये कैसे होता है? से अगर आपके पास कोई न्यूक्लियस है और उसमें आप देख रहे हो कि प्रोटॉन उसमें 18 है, से फॉर एग्जांपल प्रोटॉन्स 18 है उसमें, ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन पुट अप द 18 प्रोटॉन्स देयर एंड यू कैन पेयर 2 ओके, आप दो प्रोटॉन्स को पेयर अप कर सकते हो, सो ऑल द 18 प्रोटॉन्स विल बी पेयर्ड अप, okay, all the 18 protons will be pair up. So somebody may say कि यार pairing क्यों, why pairing, why are you going for pairing? Okay, let me say why I am going from pairing. से अगर पहला प्रोटॉन यहाँ पे है, इसका एंगुलर मोमेंटम आप मान लीजिए L है, या दूसरा प्रोटॉन ले लीजिए, इसका एंगुलर मोमेंटम L है, तो आपको क्या ये नहीं लगता कि ये दो एंगुलर मोमेंटम्स भी कपल करेंगे? They will couple, okay, they will couple, obviously they will couple, है ना? तो पेयरिंग जरूरी है. I am saying that I am taking this effect into consideration. Pairing is necessary, right? So pairing is necessary actually for multiple reasons, but this one is the best suited. Okay, angular momentum पहले का दूसरे का that will couple. अगर मैं कह रहा हूँ L और S couple कर रहे हैं तो L और L भी couple कर सकता है, S और S भी couple कर सकता है, ठीक है? Okay, इस तरह से. तो हम क्या कहेंगे, अगर कोई न्यूक्लियस ऐसा है जिसमें 19 प्रोटॉन्स है या 19 न्यूट्रॉन्स है, से फॉर एग्जांपल प्रोटॉन्स 19 है, तो 18 विल कपल अप, 18 तो आप पेयर कर लोगे, बचा क्या, लास्ट वाला एक. अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि यही एक जो होगा ना लास्ट वाला, यही डिसाइड करेगा पूरी प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियस की पूरी प्रॉपर्टीज को यही डिसाइड करेगा, ये जो अनपेयर्ड प्रोटॉन या अनपेयर्ड न्यूट्रॉन यहाँ पे होगा, ठीक है ना, यही डिसाइड करेगा. नाउ दिस assumption is called as extreme value shell model, extreme value shell model, or we can say extreme particle model. Okay, extreme particle model, I will say extreme particle model. So मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे जो है, प्रॉब्लम जो है वो it has become now simplified. We don't need to consider all of the neutrons from higher to lower energy levels. We just need to search for that one, okay, which is single, which is unpaired. Unpaired proton, unpaired neutron को ढूंढ लो, बात खत्म, ठीक है कि नहीं? वही उसी से पूछेंगे प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ठीक है, बाकी को छोड़ दो, ठीक. अब यहाँ पे देख लो एक चीज, तो अब इस तरह से स्पिन या पैरिटी के बारे में मैं आपको बोलूं, अगर मैं एक ऐसा न्यूक्लियस कंसिडर करूं जिसमें इवन, जो कि इवन न्यूक्लियस है, इवन न्यूक्लियस, एंड व्हाट आई एम सेइंग व्हेन आई से, व्हाट आई मीन व्हेन आई से इवन न्यूक्लियाई, आई मीन उसमें प्रोटॉन्स भी इवन है और न्यूट्रॉन्स भी इवन है, बोथ ऑफ द थिंग्स आर इवन, ओके, Z इज इवन एंड जो उसमें प्रो न्यूट्रॉन्स हैं दैट इज आल्सो इवन. सो समबडी मे से कि ओके दिस इज गुड, कंप्लीट पेयरिंग इज देयर, कंप्लीट पेयरिंग इज देयर, ओके, व्हेन देयर इज कंप्लीट पेयरिंग सो मीन्स दैट कि कोई डिसाइड करने वाला नहीं होगा प्रॉपर्टीज को. नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूं कि जब Z भी इवन है, P भी इवन है, ऑल ऑफ द थिंग्स विल कपल टुगेदर एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस विल बी जीरो, इट विल बी जीरो. ओके, से आई एम जस्ट सेइंग वन थिंग, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, चलिए एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लीजिए, जब मैं कहता हूं इसका स्पिन क्वांटम नंबर 1/2 है, we have a classical analog, it moves clockwise और some anti clockwise, जो भी है, मतलब मोशन के साथ रिलेट करते हैं ना, S is equal to -1/2, हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जैसा भी है जो भी है, क्लॉकवाइज दिस वन एंड एंटी क्लॉकवाइज दिस वन, ओके, ये रोटेट करता है, ठीक है. इफ आई से स्पिन ऑफ न्यूक्लियस, कैन समबडी गिव मी सम एनालॉग टू दिस, व्हाट डज दिस मीन, स्पिन ऑफ न्यूक्लियस, इसका क्या मतलब है स्पिन ऑफ न्यूक्लियस? अब ये न्यूक्लियस भी घूमता है, स्पिन कंसीडर करेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे. जब न्यूक्लियर फिजिक्स में आपसे स्पिन कहा जाए, जब न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको स्पिन कहा जाए, स्पिन ऑफ न्यूक्लियस, प्लीज रिमेंबर स्पिन ऑफ न्यूक्लियस, इट मीन्स दैट कि आपको बोला जा रहा है टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम मतलब जे आप निकालोगे पहले, जे, एक न्यूक्लियन के लिए जे, दूसरे न्यूक्लियन के लिए जे, तीसरे न्यूक्लियन के लिए जे, सम ऑफ ऑल द जेस, दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्पिन, के टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम. In nuclear physics, spin of nucleus means total angular momentum, okay, it doesn't mean something which rotates or like that thing, okay. So you will say that spin, total spin of the nucleus when we have even nucleus is 0, okay, total spin is 0 because all of them are paired, so nothing is unpaired, so we are done, okay. Now we write it like this way, J
what J represents total angular momentum. Okay, so you can say, sir, J is positive, J is 0. Okay, J is 0. In that case, J is 0. And now we have another term which is called as parity. Parity is there. Okay, I will not go into details of parity. It's a long topic. Parity क्या होता है, इसकी classical वगैरह या significance, वो तो एक लंबा topic बन जाएगा. I will just mention here, L is 0. अगर किसी न्यूक्लियन के लिए L 0 है, या इस तरह से L 0 है, या 2 है, या 4 है, या 6 है, it means कि even है. Okay, I am writing it even है. तो इसका मतलब है इसकी parity क्या है, पॉजिटिव है. इसकी parity पॉजिटिव है, और या हम कह सकते हैं इसकी पैरिटी इवन है. ओके, इवन पैरिटी इज देयर, राइट. अगर एल अब ऑड होगा तो मतलब कौन सी पैरिटी, नेगेटिव पैरिटी और ऑड पैरिटी. ओके, सो आई विल राइट पैरिटी हियर. जे के ऊपर मैं पाई डालूंगा. ओके, पाई डालूंगा मैं यहाँ पे. ठीक है, सो ऑल ऑफ देम आर पेयर्ड, सो पैरिटी विल बी पॉजिटिव हियर. ओके, ऑल ऑफ देम आर पेयर्ड, पैरिटी विल बी पॉजिटिव. नाउ किसी को ये समझ नहीं आ सकता है कि पैरिटी इस टाइम पे पॉजिटिव कैसे है. ठीक है, अभी मैं एनर्जी लेवल जब डायग्राम आप स्टडी करोगे तो ये पैरिटी पॉजिटिव ही आती है. ओके, अब अगर हम कंसिडर करेंगे न्यूक्लियस को विच डू नॉट कंटेन इवन इवन कॉम्बिनेशन, जिसमें ऑड ए होगा. ऑड ए का मतलब है इधर द प्रोटॉन्स आर ऑड और न्यूट्रॉन्स आर ऑड, वन ऑफ देम इज ऑड. ओके, सो लेट मी कंसिडर दैट ऑड. लास्ट थिंग इज ऑड न्यूक्लियर, ऑड ए न्यूक्लियर, ऑड ए न्यूक्लियर. ऑड ए का मतलब क्या है कि उसमें ए जो है ऑड है. ठीक है, मतलब या तो प्रोटॉन्स ऑड है या फिर न्यूट्रॉन्स ऑड है. ठीक है, तो such nucleuses will always contain an unpaired electron, न्यूक्लियन, इधर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. सो उस वजह से यहाँ पे क्या होगा, पैरिटी होगी कुछ ना कुछ. ओके, लेट मी जस्ट फिनिश माय लेक्चर विद दिस सिंपल actually example. Okay, let us consider this 7 and 15. नाइट्रोजन 7 15, इसमें न्यूट्रॉन्स 8 हैं. ओके, तो अगर इसमें न्यूट्रॉन्स 8 हैं तो मतलब न्यूट्रॉन्स तो ऑल आर कपल्ड. ओके, ऑल आर पेयर्ड, राइट. सो व्हाट वी नीड टू डू इज हियर. ओके, लेट अस ड्रा द एनर्जी लेवल्स हियर. क्विक बिट में बनाएंगे यहाँ पे 1s. ओके, दिस इज 1s level. Then we have then we will be having other level. Okay, I will name them, right. Then will be other level, then will be other level, and then will be other level. Okay, so there are multiple levels. ये levels मैंने बना दी. Okay, so please tell me the name. First one is 1s, and what is the possible value for it? 1/2, 1s half. Second one is, okay, you may remember 1p 3/2. Okay, second 1p 3/2. Okay, third one is 1p 1/2. Okay, this is 1p 1/2. Okay, you have to remember. And then we have 1d 5/2. Okay, 1d 5/2 is there. Okay, यहाँ पर फिर ऊपर आता है 1d 3/2, और बीच में सैंडविच हो गई होती है लेवल कौन सी, 2s half. 2s half यहाँ पे बीच में सैंडविच हो गई होती है. ठीक है, ओके, लेट्स जस्ट फिनिश ऑफ दिस. ओके, वी हैव दिस. जरा बताइए प्रोटॉन्स कितने और न्यूट्रॉन्स हैं. ओके, लेट मी राइट दिस साइड. आई विल राइट न्यूट्रॉन्स and this side I will write protons. Okay, so बताइए न्यूट्रॉन्स तो हमारे पास 8 हैं, पेयर्ड है. ओके, दिस इज n 2 n n n and n. Remember p 3/2 contains 4. Okay, it can carry 4, n and n. Okay, they are paired, 2 4 and again 2 paired, right. अब प्रोटॉन्स की बात, न्यूट्रॉन्स की बात करें तो, प्रोटॉन्स की बात करें तो 2 4 5 6, इस तरह 4 5, अब आ गई 6. अब लास्ट वाला यहाँ पे 7. दिस वन इज अनपेयर्ड, इसी को पिन प्रिक करेंगे. ठीक है, यही हमारे लिए जो है ना, यही इंपॉर्टेंट है. ये वाला इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन. ठीक है, अब ये किस लेवल में है, ये 1p 1/2 में है. तो इसके लिए j का वैल्यू क्या है, 1/2 है ना. j का वैल्यू क्या है इसके लिए, 1/2. तो चलिए ठीक है, j का वैल्यू 1/2. सो व्हाट इज द स्पिन ऑफ दिस टोटल न्यूक्लियस, व्हाट इज द स्पिन ऑफ दिस न्यूक्लियस. You may say simply 1/2. 1/2 is the total spin of this nucleus. Okay, okay, then what is the parity. p क्या है, p लेवल में है ना. चलो p लेवल में है. p के लिए l क्या होता है, p के लिए l का वैल्यू 1 होता है. तो पैरिटी क्या आएगी, l ऑड है ना, तो पैरिटी नेगेटिव आएगी, है ना. सो इट विल बी नेगेटिव, पैरिटी नेगेटिव आएगी. सो एट लास्ट यू विल से j is 1/2. And if I write parity here, pi, so that is minus. Okay, this is the ground state of this.
नाइट्रोजन न्यूक्लियस, ठीक है। अगर आपको याद होगा एटॉमिक फिजिक्स में आप लिखते थे, जब आपको ग्राउंड स्टेट बोला जाता था, ग्राउंड स्टेट लिखो, तो आप लिखते थे n इज इक्वल टू दिस, l इज इक्वल टू दिस, m इज इक्वल टू दिस एंड spin इज इक्वल टू दिस। हियर यू डोंट नीड टू राइट दोज मच, यू जस्ट नीड टू राइट दिस थिंग। ये एक बार आप ये लिख दो तो बस अपनी समझ में आ गया कि यार ये जो है ये यहाँ पे पैरिटी है, ठीक है। स्पिन भी पता चल गया और पैरिटी भी पता चल गया। ओके ओके, दिस वाज अबाउट पैरिटी। ओके, ग्राउंड स्टेट में आप पैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो एंड बिलीव मी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स करेक्ट। You can believe most of the times it's correct, most of the times. Okay, there is some exception, but I will not discuss those exceptions here. Okay, let me say we have a nucleus, diagram बनाई हुई है, तो हमारे पास एक न्यूक्लियस है, कंसिडर कर लीजिए एक न्यूक्लियस और एक है। say for example we have this one, oxygen one, okay, oxygen. If you are still confused you can just have this one, तो ये क्लियर हो जाएगा। 8, then we have 17 and 9, okay, तो आप बता दीजिए क्या है। प्रोटॉन इज 8 है तो ऑल ऑफ देम आर पियर्ड, तो लेट मी राइट वन मोर हियर, तो दिस इज पियर्ड, हो गया ये बात खत्म। न्यूट्रॉन्स कितने हैं 9, तो ये 8 तो है ही, अब लास्ट वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस में है, 5/2 में है, तो जे क्या आएगा, जे आएगा 5/2, है ना, ठीक, 5/2 आएगा, ठीक है। और चूंकि डी में है, डी के लिए L2 होता है और इवन होता है, तो ये पॉजिटिव। ओके, सो पैरिटी ऑफ दिस is spin parity is this 5/2 plus. Okay, this denotes the ground state. Okay, okay, I think this is quite enough, right? Rest